In this video, I will be giving you idioms of mouth. The first one is to look down in the mouth. To look down in the mouth, literal meaning है मुंह खोल के उसके अंदर देखा जा रहा है. But the exact meaning or when do we use this idiom is when we are trying to say that the so and so person is really sad or the person is depressed. You can use it for yourself also. आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये, ठीक है? Nowadays things are not going in the right order as I am always looking down in my mouth. ठीक है? तो जब कोई व्यक्ति बहुत उदास है, बहुत डिप्रेस्ड है ना, तो आप बोल सकते हैं the person is looking down in the mouth. एग्जाम्पल और देती हूँ. अगर मैं बोलूँ after losing the match, है ना, कोई भी मैच हो सकता है. After losing the match, the players looked down in the mouth. कि मैच के हार जाने के बाद जो प्लेयर्स थे वो बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत उदास हो गए. ठीक है? To look down in the mouth. So and so person, Mr. Mishra एग्जाम्पल ले लीजिए. Mr. Mishra has lost his only son and nowadays he is looking down the mouth. बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस है. ठीक है? इडियम समझ में आया है ना? Next one is to have a big mouth. Again, I've told you in my previous video also, idioms की हमेशा दो मीनिंग होते हैं, literal and figurative meaning. Big mouth मतलब बड़ा मुंह होना. Now ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा मुंह है. You will use this idiom or this phrase for people who can't keep secrets. होते हैं ना कुछ लोग, उनसे कुछ भी बोलो छुपा के रखिएगा, बताइएगा नहीं, वो by default बता देते हैं. उनकी गलती नहीं होती पर वो बता देते हैं. So for such people, you can use this idiom that so and so person has a big mouth. You better do not tell the secret up to him. ठीक है? So when a person can't keep secrets, then in that condition we use this phrase. ठीक है? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, do not tell Sameer about surprise birthday party as he has a big mouth. That means the person whose name is Sameer can't keep secrets. ठीक है? Moving to next idiom, which happens to be to shoot off one's mouth. है ना? To shoot off one's mouth also more or less this and this are kind of same only. ठीक है? कि आप डायरेक्ट बात आपको बताई जा रही है and you can't keep it. है ना? आप सीधे सीधे नहीं बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं. ठीक है? To shoot off one's mouth also is when you are not directly saying things. है ना? है ना? When you are not directly saying things that should be kept in hidden, उनको छुपी होनी चाहिए थी चीज, वो रिवील कर दी जाती है. ठीक है? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई कोई एग्जांपल दूं कि कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना? इट इज केप्ट, ऑफ कोर्स दे वो लॉन्च करेंगे, सबको बताएंगे, लेकिन कोई एम्प्लॉय ऐसा है दैट ही कांट वही वाली बात आ गई ना, ही कांट कीप, ही हैज अ बिग माउथ. सो व्हाट डिड ही डू? ही शॉट ऑफ हिज माउथ regarding the project or product that was supposed to be launched by the company, even before he let the other people know about it. ठीक है? तो when you are not directly saying things, ठीक है, या when you are not able to keep secret, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा. ठीक है? एग्जाम्पल देती हूँ. समीर का ले लें, चलिए साहिल का ले लेते हैं. Sahil shot off his mouth about the surprise that his
father had planned for his mother. कि साहिल के पिताजी ने जो सरप्राइज प्लान किया था, है ना, वो साहिल ने पहले ही रिवील कर दिया. पहले ही बोला ना, दिस एंड दिस आर मोर और लेस सेम. ठीक है, एक ही है. टू हैव अ बिग माउथ एंड टू शूट ऑफ वंस माउथ. ठीक है. नेक्स्ट इज अ माउथफुल. अ माउथफुल मतलब मुंह में भरा हुआ है सब कुछ. दिस इज लिटरल मीनिंग. बट यू यूज दिस फ्रेज when you come across words that are kind of lengthy and you find it difficult to pronounce them. कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है. कुछ नाम ही कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि आप नहीं उनको स्पेल कर सकते हो, नहीं प्रोनाउंस कर पाते हो, है ना. तब उस कंडीशन में बोलते हैं a mouthful. When you come across, see I'm underlining this, I'm drawing a wavy line so that when you watch my videos you get to know that okay, the ones that have wavy lines under them, they are meanings of the idiom, and under that I've given one example. Okay, a mouthful का मैं बता रही थी. When you come across a big name that is not easy to pronounce, that is not easy to pronounce, है ना. ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल में दूं, योर वाईफाई पासवर्ड इज माउथफुल. द पासवर्ड ऑफ योर फोन इज माउथफुल. द पासवर्ड ऑफ योर लैपटॉप इज माउथफुल. बहुत बड़ा है. ठीक है. टू बी मीली माउथ, है ना. ये फ्रेज आप इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर उन लोगों के लिए जो कोई भी सवाल का जवाब या कोई भी बात वो बताते हैं वो सीधी नहीं बताते, घुमा फिरा के बताते हैं. इन शॉर्ट आई वुड से दे काइंड ऑफ व्हाट डू दे डू, दे काइंड ऑफ हाइड, दे ट्राई टू हाइड द ट्रूथ. ठीक है. टू बी मीली माउथ व्हेन द ट्रूथ is not being disclosed, है ना. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कौन लोग ऐसे, जैसे एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस का अगर दूं, है ना, व्हाट डू दे डू. कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, whenever they are asked about कि ये लैप्स हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, किसकी वजह से हुआ, या तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, है ना, ऑपोजिशन पार्टी पे. So what are they doing? They are giving a mealy mouthed answer. ठीक है. Instead of giving the truth, they give a mealy mouthed answer. Okay. The politician, जरूरी नहीं पॉलिटिशियंस भी, घर में भी ऐसे लोग होते हैं, है ना, जिनकी गलती होती है but they don't accept it and they give mealy mouthed answers. Okay. The politicians यहाँ है ना, the politician gave a mealy mouthed answer and hid the truth. सच्चाई को मंत्री जी ने छुपा लिया. mealy mouthed answer. ठीक है. घर में भी अगर दो बच्चे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, किसी ने एक नुकसान कर लिया है, आप नहीं जान पा रहे कि दोनों में से किसने चीज तोड़ी है, या किसी कोई वास है, या कोई बर्तन टूट गया, फूट गया, कटलेरी है ना, तो घुमा फिरा के बच्चे आंसर कर रहे हैं, आप नहीं रेक्टिफाई कर पा रहे, नहीं जान पा रहे हैं, तो इन दैट केस आल्सो द चिल्ड्रन आर गिविंग mealy mouthed answers. ठीक है. देखिए, एक इडियम रहता है पर मैं उसका मतलब भी समझा देती हूँ, एंड ट्राई टू गिव एज मेनी एग्जांपल्स एज आई कैन. ओके. नेक्स्ट इज टू मेक one's mouth water. Mouth water. Okay. Now this idiom has two meanings. One is literal meaning and the other one is figurative meaning. ठीक है. अब literal meaning, to make one's mouth water, literal meaning क्या होगा भाई? कभी कभी होता है ना, कभी कभी क्या मेरे साथ हमेशा होता है, कुछ अच्छी चीज दिख जाती है, या अगर नहीं भी दिख रही है मैं उसके बारे में सोच लेती हूँ. जैसे अभी पढ़ा रही हूँ और अभी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो मुंह में पानी आ जाता है. हिंदी में सुना है ना, वो अपने आप सलाइवा सेक्रेट होने लग जाता है. सो on seeing my son eating gulab jamuns, I had water in my mouth.
ठीक है, बेटे को गुलाब जामुन खाते देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये तो हो गया आपका लिटिल मीनिंग, व्हेन यू एक्चुअली हैव वाटर इन योर माउथ। ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग का मतलब है कि मुंह में पानी आ जाए खाने की चीज देख के नहीं, दूसरों की ऐसी कोई चीज, जरूरी नहीं चीज है, कोई पोजीशन है, कोई किसी की गाड़ी हो सकती है, कोई किसी का घर हो सकता है ना, विच यू फील दैट यू शुड ऑल्सो हैव इट, है ना। हमको सपना लगने लगता है कि वो चीज उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा फिगरेटिव मीनिंग। अगर एग्जाम्पल देके समझाऊं, हर photos of vacation that she recently uploaded on her Instagram account made my mouth water. ठीक है, let me write the example. Her photographs of vacation abroad made my माउथ वाटर, कि मेरे मुंह में पानी आ गया, फिर मैं चाह रही थी कि मैं भी उस जगह जाऊं, मैं भी घूमने बाहर जाऊं। ठीक है, the next is to be foul mouth. This is very simple and I hope आपने पता होगा। when you say things that should not be said, है ना, जब आप गलत भाषा का प्रयोग करें, है ना, obscene language का जब आप प्रयोग करें, तब आप बोलते हैं कि the person is a foul mouth person। ठीक है, my friend is becoming a foul mouth, so I have kind of maintained a distance from her। मेरी जो दोस्त है वो गलत शब्दों का या गलत, जैसे गाली गलौज जैसे बोलते हैं ना, का प्रयोग करने लगी है। सो आई काइंड ऑफ हैव मेंटेन्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम हर, मैं दूर होती जा रही हूँ, मैंने बातचीत बंद कर दी है। फाउल माउथ। ठीक है, या एग्जांपल दूं, डोंट बी फाउल माउथ व्हेन द किड्स आर अराउंड। बच्चे जब आसपास हैं तो गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सो फाउल माउथ। द लास्ट वन इज टू पुट वर्ड्स इनटू समवन्स माउथ, है ना। अब इसका लिटरल मीनिंग तो ये किसी के मुंह में आप शब्द भर रहे हैं, पर इसका एक्चुअल मीनिंग इडियम का है जब आप किसी पे इल्जाम लगाएं, when you accuse someone of something that the person has not done or the person has not committed. In that case you would say stop putting words into my mouth या stop putting words into someone's mouth। उस पे लांछन लगाना, उसको accuse करना बंद करें। ठीक है, when you to accuse someone, see I kind of forgot to make a wavy line under the meaning। okay, to accuse someone of something that the person has not done। ठीक है, आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। अब इस वीडियो में जो इडियम आपका फेवरेट है, write it out in the comment section that this idiom is favorite of mine and I want that। अगर आप सारे इडियम से सेंटेंसेस बना सकें वेल एंड गुड, लेकिन आई वांट कि जो आपका फेवरेट इडियम है उससे एक सेंटेंस बना के आप कमेंट सेक्शन पे डालिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।